Hello, welcome back. Now we will study the modern of Karnakshvedam Karnal, that is tinnitus. So let's move to the lecture. So tinnitus, it means ringing sound in the ear. So ringing sound or noise in the ear is known as tinnitus. It is very common, sometimes the only clinical feature. The characteristic feature is the origin of the sound is from within the patient. ये जो आवाज है पेशेंट को अपने अंदर की तरफ से आती है, आवाज बाहर से नहीं जबकि अंदर से अराइज होती है. May be regarded as a sign of irritation of cochlea or upper auditory pathways. It can be described as roaring, hissing, swishing, rustling, buzzing, rushing, yammering, sound of sea or escape of steam. तो डिफरेंट टाइप की साउंड्स जैसे हमने आचार्य विद्रोह के अनुसार पढ़ी थी वैसे ही इसमें रोरिंग जैसे रोरिंग में शेर की दहाड़, हिसिंग सांप की फुसफुसाहट, स्विसिंग फेंट की आवाज, रसलिंग पत्तों की सरसराहट, बजिंग हवाओं का चलना, और रशिंग हैमरिंग या साउंड ऑफ सी या फिर भाप का निकलना. ऐसी अलग अलग साउंड जो है पेशेंट को परसीव होती हैं. तो ये साउंड जो अलग अलग होती है, रोरिंग, हिसिंग, स्विसिंग, रसलिंग, हैमरिंग, साउंड ऑफ सी और एस्केप ऑफ स्टीम, तो ये अलग अलग हो सकती हैं. तो इसकी टाइप्स जो है, इसकी टाइप्स में 3 टाइप्स होती हैं इसकी. सब्जेक्टिव, विच कैन बी हर्ड बाय द पेशेंट ओनली, ये सिर्फ पेशेंट को ही सुनती है. सेकंड जो है वो ऑब्जेक्टिव है. इट कैन बी हर्ड बाय द एग्जामिनर आल्सो विद द स्टेथोस्कोप, इसको एग्जामिनर भी स्टेथोस्कोप से सुन सकता है. और थर्ड जो है वो साइकोजेनिक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. तो इसके कॉजेज जो हैं वो हैं, सब्जेक्टिव के कॉजेज जो हैं, फर्स्ट ऑटोलॉजिकल कॉजेज जो हैं वो इंक्लूडेड हैं. इम्पैक्टेड वैक्स, जिसको हम आयुर्वेद में कार्नवॉश कहते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मध्यकर्ण शोथ, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSOM कहते हैं. Then abnormally patent extraction tube synchronous with respiration. तो अगर एक्सट्रेकियन ट्यूब जो है abnormally patent हो तब भी वो साउंड जो सुनती है रेस्पिरेशन के साथ साथ. Then Meniere's disease, ये एक सिंड्रोम है जिसमें वर्टाइगो, टिनाइटिस और डेफनेस तीनों एक साथ मिलते हैं. Then presbycusis, presbycusis जो होता है it is hearing loss in old age. Then otosclerosis, it means sclerosis of the middle ear bones. Then ototoxic drugs, वो ड्रग्स जो कि ईयर के लिए हार्मफुल होती हैं. Then tumors of auditory nerve, then noise trauma. These are causes which were otological. Non-otological causes include diseases of central nervous system, arteriosclerosis, anemia, hypertension, migraine, and epilepsy.
Then coming to objective type of tinnitus, its causes include vascular tumors of the middle ear, that means glomus tumors. Vascular tumors of the middle ear are also known by the name of glomus tumor, which causes swishing tinnitus synchronous with pulse. तो इसमें स्विचिंग tinnitus arise होता है जो पल्स के साथ साथ प्रेजेंट रहता है. Then aneurysm of carotid artery, it also causes swishing tinnitus synchronous with pulse. इसमें भी पल्स के साथ जो है वो tinnitus मिलता है in case of aneurysm of carotid artery. Then palatal myoclonus, it produces clicking sound due to clonic contraction of the muscles of the soft palate. Then venous sound, arteriovenous malformations. और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि थर्ड टाइप जो वो साइकोजेनिक है जिसका कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, वो साइकोजेनिक इन ओरिजिन होती है. तो इसमें जो हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं वो डिटेल हिस्ट्री along with general and ENT examination is very important. So detail history, complete hemogram, pure tone audiometry and impedance audiometry, speech discrimination test, tinnitus matching ENG, then CT scan of CP angle, that is cervio-pontine angle. And here tinnitus matching ENG means electronystagmography. Nystagmus मैंने आपको पहले बताया कि involuntary oscillatory movements of the eyeball, उसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको ENG कहते हैं और ये tinnitus में भी परफॉर्म किया जाता है. Then coming to its treatment, जैसा पहले बता चुका हूँ, tinnitus is a symptom and not a disease. Whenever possible, its cause should be discovered and treated. When no cause is found, management include, जब कोई भी cause found नहीं होती तो इसको हम इस तरीके से मैनेज करते हैं. Reassurance and psychotherapy, techniques of relaxation and biofeedback, conservative treatments such as vasodilators, sedatives, vitamins and tranquilizers. यहाँ पे हमने देखा vasodilators तो vessels को dilate करेंगी, vitamins तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, sedatives जो है वो sedation करेंगी और tranquilizer जो है वो sedation नहीं करेंगी, अदरवाइज वो ड्राउजीनेस या डिजीनेस के यूज नहीं करेंगी, एज sedatives करती हैं. देन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें इंक्लूडेड है एंडोलिम्फेटिक सैक कंप्रेशन. आपको जैसे पता है एंडोलिम्फेटिक सैक कहाँ का स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर है एसोसिएटेड विद वेस्टिब्यूल. Then intratympanic injection of Velcro, cryotherapy for cochlear destruction, then cochlear nerve section if no hearing. तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है. उसके बाद मास्किंग ऑफ tinnitus, tinnitus को मास्क करना, कि उसको कवर करना. Use of tinnitus maskers is done if no cause is found. These are quite helpful, such as putting a ticking alarm close to the person, or a very light soothing sound, or music through headphone just to mask the noise which may be disturbing the sleep. So this is the topic of tinnitus. So thank you. So अब हमने कारणक्षेद, कर्नाल
और उनका मॉडर्न टिनाइटिस कर चुके हैं। तो जो ये कर्ण और कर्णनाद में अगर डिफरेंस की बात करी जाए तो कर्ण में जो दोष है वो त्रिदोषज है और कर्णनाद में दोष विवातज है। उसी प्रकार से जो कर्ण श्वेड में तो बांसुरी के समान आवाज सुनाई देती है और कर्णनाद में जो है जो विभिन्न प्रकार के स्वर सुनाई देते हैं जो कि आचार्यों द्वारा वर्णित किए गए हैं, आचार्य वेद, सुक्षुत और भागवत के अनुसार। और उसी प्रकार दोषानुसार चिकित्सा है। कर्णनाद की चिकित्सा जो वातज चिकित्सा है और कर्ण श्वेड की चिकित्सा जो त्रिदोष है। तो ऐसे ही कर्ण श्वेड जो है उसमें कर्ण श्वेड में जो है जो चिकित्सा है वो सार्षप तेल से बताइए, जबकि कर्णनाद में चिकित्सा का प्रॉपर वर्णन नहीं किया गया है। कर्णश्वेड जो वो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की प्रॉब्लम्स के कारण होता है, जबकि कर्णनाद जो है वो इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है। ये दोनों में अंतर है, तो इनको भी आप देख लीजिए, उसके बाद डिस्कशन हम कर लेंगे। थैंक यू।